Hello everyone, myself Siddharth Sherpa back again with today's SST classes. Today we will be discussing some MCQ question from chapter 3, that is civics, that is constitutional design. So let's not waste much time and let's move towards the questions. So the Constituent Assembly adopted the Constitution of India on when? Amit? Is he correct? Ritik? Ritik? Anyone? Why it's 26 November and why not 26 January? Okay, good. Next. No? Okay, then you come. Explain. Okay, there is a difference between enforcement and adaptation, yes. It was adopted in 26 January 1949, but it was enforced on, or it was enacted on 26 January 1950, yes. So sorry, I also got confused. So the answer will be B. Which of the following sentences is wrong about Dr. B.R. Ambedkar? Yes, anyone? Okay, the housefly was correct, yes. He was born in Maharashtra. This is the wrong answer, okay. That means he was not born in Maharashtra, he was born in Madhya Pradesh. Yes? Okay, good. Who among the following was not the member of Constituent Assembly? It's a very simple answer from girls. Okay, Shreya. Mahatma Gandhi. Okay, good. Nelson Mandela remained in the jail for anyone from boys? Okay, come, Sharma. Good. So Mahatma Gandhi was not the member of Constituent Assembly. Yes, he died just after independence. Is that clear? And not only that, but his dreams were shared among and is entitled, or some of his visions are listed in our constitution. Not only that, Nelson Mandela remained in jail for 28 years. 28 years is a very long time. It's not like 1 year, 2 years, okay, 28 years in jail, in prison, in his own country for treason. देशद्रोह का टैग लगा था ना. Yes. Next question. Apartheid in South Africa was discrimination on the basis of Samir. Apartheid in South Africa ये एक सिस्टम था. किसके आधार पे डिस्क्रिमिनेशन था? जेंडर के आधार पे, रिलीजियन के आधार पे, रेस के आधार पे, इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे. Come and take it. Okay, very good. Race, it's not car race. Okay, जाति एक प्रकार से, blacks and whites, color, racial discrimination. ठीक है.
ये apartheid was a racial discrimination, racism. How many members had the constituent assembly, how many members had the constitution that wrote the Indian Constitution? It's, I think, 199 or 299? Okay, there is no option. 299 members were there. That means I made wrong yesterday also question. Okay, no worries. It can be corrected. Which of the following terms did not include the which is not included in the preamble of Indian Constitution? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल क्या एक प्रकार से प्रीफेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. ये बताता है कि हमारे संविधान में क्या दिया गया है. सो डीपली अलग बात है, लेकिन प्रीफेस है. तो इन चारों में से कौन सा चीज हमारे प्रीएम्बल में नहीं है? आकांक्षा? Religion. Very good. Religion is not, because we are a secular country. No. Secularism means that we do not promote any kind of religion. So religion, okay, good. The Indian Constitution came into effect on, अब ये अलग बात है, कब आया, लागू कब हुआ? आशुतोष, okay, very good. Come. Simple question. Why did you ask? 26 January 1950. Very good. Go. Okay, 26 जनवरी 1950 को हमारे दोस्त ने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था? अडॉप्ट किया था. बन चुका था पहले ही, यस, बट इसको कुछ इंपॉर्टेंस था. 26 जनवरी पहले ही हम लोग ने क्या घोषित कर लिया था? इंडिपेंडेंस डे मनाने का ठान लिया था बिफोर इंडिपेंडेंस. सो इसीलिए उसी दिन को एक एज अ रिमेम्बरेंस उसी दिन को क्या किया था? ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. संजना, on what charges was Nelson Mandela sentenced to life imprisonment? Life imprisonment मतलब क्या होता है? हाँ, जीवन भर जेल में अंदर रहना. वेरी गुड. आजीवन कारावास, यस, कहा जाए तो ना. सो ट्रीजन, देशद्रोह के टैग लगा था, बिकॉज ही what did he do? He started to revolt against the apartheid system. Is that clear? So that's why भाई गोरे लोगों का चलता था तो भेज दिए जेल. In which way did the system of apartheid discriminate among the South Africans? Anyone? Okay, Riya. सही में ऑल ऑफ दिस वेरी गुड. यानी कि जो apartheid सिस्टम था, यू कैन से सोशल कॉन्टैक्ट, मतलब दो जातियों के बीच में एक डिफरेंस बना के रखा था ना, रेस्ट्रिक्टेड. यानी कि दे वेर नॉट अलाउड टू कॉन्टैक्ट विद दी white people until and unless they had any, you can say license, or you can say एक चालान काटते हैं ना, मिला है, ऑर्डर मिला है, तो you can. Otherwise you are not allowed, it will be illegal. And segregation of public facilities, यानी कि सारे पब्लिक फैसिलिटीज गोरे के लिए अलग, काले के लिए अलग. अब उसमें अब काले के लिए अलग बोलेगा तो अब क्वालिटी भी समझ लो कैसा हो सकता है जी. क्रिएटेड स्पेसिफिक जॉब कैटेगरीज. अब जब इतना चीज में सब कुछ हो रहा है तो भाई जॉब में भी ये देखने को मिलेगा ही. एंड यू कैन से ऑल ऑफ दिस वेयर अ पार्ट ऑफ apartheid सिस्टम. ठीक है, जाति में तो कलर में तो भेदभाव किए, लेकिन कलर के साथ साथ पब्लिक प्लेसेस, सोशल कॉन्टैक्ट और रेस, जाति के लिए अलग अलग कैटेगरीज पे जब जॉब रख देना, तो दिस इज अ वेरी बैड थिंग. I wish nobody has to face this kind of things in today's time. लेकिन आज के दिन में ये सब कम मिलेंगे. Okay, why did the white regime decide to change its policies? अपनी नीतियों को हटाने का क्यों सोचा white regime? क्योंकि इंक्रीज एंड प्रोटेस्ट बढ़ गए थे.
या गवर्नमेंट रियलाइज द रिप्रेशन वाज बिकमिंग डिफिकल्ट, या राइज ऑफ सिंपैथेटिक एटीट्यूड इन गवर्नमेंट फॉर द ब्लैक्स, या गवर्नमेंट को दया आया गोरे के ऊपर, इसीलिए ये लोग ने क्या किया, पॉलिसीज चेंज करने का सोचा. बोलो क्यों? Anyone? Okay, come Akash. Anushka. You are correct, ऐसा नहीं है, बट दोनों होगा, ए भी होगा बी भी होगा, क्योंकि स्ट्रगल्स बढ़ रहे थे. अब गवर्नमेंट को पहले तो दबा रख, छोटा छोटा था तो क्या हो रहा था, दबा रहे थे. लेकिन when the struggle was becoming more and more popular and more violent, no black peoples were really fighting for their independence. So at the time the government realized कि अब और इसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं. भाई दया तो कभी नहीं आया था, याद रखना. समझ रहे हो, अपर थ्रेड का सिस्टम इतना कुछ है तो कब दया आएगा ये लोगों को. So you are not wrong, Rajdeep, but the both should be used. Okay, both answers है, A and B. ठीक है, so that's why you can say both. When did South Africa become a democratic country? You want to come? I won't give him this. Okay. Very good. 26th April 1994 गवर्नमेंट बना, इंडिपेंडेंस हुआ, डेमोक्रेटिक अपनाया, ऑल्सो नोन एज द रेनबो नेशन, जहाँ पे बहुत चर्चा हुए थे वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, क्योंकि वाइट पीपल वेयर, अभी क्वेश्चन होगा उसमें नहीं बताएंगे हम, जब क्वेश्चन आएगा तब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला. Simple. Walk to freedom, South Africa wins freedom, our freedom, the long walk to freedom. Nisu? Which will be the correct? Very good. The long walk to freedom. Is that clear? The long walk to freedom. It's a biography, ऑटोबायोग्राफी दैट नेल्सन मंडेला ने खुद लिखा है, तो ऑटो आया तो खुद लिखा है. सो इट्स अ वंडरफुल नोवेल. यू आई थिंक इट्स इन क्लास 10th और 9th इंग्लिश बुक ऑल्सो. इज दैट क्लियर? यू लर्न द सेम स्टोरी है, पढ़ने का जरूरत, कहानी पता चल ही गया है तो उसी के बारे में. इज दैट क्लियर? ओके, व्हाट डिड द व्हाइट माइनॉरिटी वांट फ्रॉम द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? न्यू कॉन्स्टिट्यूशन से व्हाइट माइनॉरिटी को क्या चाहिए था? क्या चाहिए था? स्पेशली क्या चाहिए थे? स्पेशली एनीवन? ओके, संजना. ओके, वेरी गुड. सो नाउ व्हेन माइनॉरिटी, व्हाइट पॉपुलेशन में ज्यादा नहीं थे बेटा, रिमेंबर दैट. भले रूल कर रहे थे लेकिन दे वर नॉट मोर इन पॉपुलेशन. दे वर अफ्रेड कि नया कॉन्स्टिट्यूशन आएगा तो वो लोगों का प्रॉपर्टी क्या किया जाएगा, लिया जाएगा ब्लैक के द्वारा. इसीलिए जब भी माइनॉरिटी जो व्हाइट माइनॉरिटी वाले थे वो लोग ने क्या कहा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में, कि वो लोगों के प्रॉपर्टी और प्रिविलेजेस को क्या करे, बचा के रखा जाए या उन लोग से छीना ना जाए. इज दैट क्लियर? क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था एक डिफिकल्ट सिचुएशन में बना था, बिकॉज इतने सालों से व्हाइट पीपल इतना जुर्म करके आ रहे थे. अब अचानक से जब ब्लैक पीपल मेजोरिटी में आ गए तो एक की ट्रस्ट की भावना नहीं थी. एक क्या भावना नहीं थी? दे डिड नॉट ट्रस्ट ईच अदर. अब व्हाइट को भी लगा होगा कि भाई ब्लैक जैसे व्हाइट ने किया था वैसे ब्लैक करता, अपर थ्रेड जैसा ही कर देता, it wouldn't be a great scene in South Africa. So to sort out that thing,
they stayed, they had debates, discussion, and they drafted a constitution for South Africa in which they demanded there should be some protection and privileges, there should be some protection for their privileges and property. समझ में आया? Question number 16. Which of the following sentences is correct? All countries that have constitutions are necessarily democratic. ये कह रहा है कि सारा देश जिसके पास संविधान है वो क्या है? डेमोक्रेटिक है, नेसेसरीली डेमोक्रेटिक है. All countries that are democratic necessarily have constitution. या सारा देश जो डेमोक्रेटिक है उसके पास नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, या जिसके पास संविधान है या कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक है. ठीक है? या बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. नो. एनीवन? You want to come? Boys? Just now one girl came. Now it's your turn. Anyone from boys? Read the question properly, okay? And read the option properly. You want to come? Okay, come. Ayush, you may go. पक्का? वेरी गुड. दिस विल बी द आंसर. इट्स नॉट नेसेसरी कि जो जिसके पास संविधान है वो डेमोक्रेटिक हो. ठीक है? बट जो डेमोक्रेटिक कंट्री है बेटा उसके पास संविधान रहेगा ही, और यही लाइन बोल रहा है. ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक नेसेसरली हैव कॉन्स्टिट्यूशन. एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन तो एक प्रकार से इट्स अ सेट ऑफ लॉज. एक कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक भी रहेगा तो उनके पास संविधान हो सकता है या होगा जिसके तहत कोई भी लीडर आएगा तो रूल करेगा, या वो अपना नया संविधान बना देगा. जैसे परवेज मुशर्रफ आए थे, भाई तुम लोग पढ़े हो, चैप्टर 1 में आए थे, अपने हिसाब से संविधान बना दिया, लेकिन वो डेमोक्रेटिक था? नहीं था. यस. वेयर वॉज द 1931 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? तो ये जो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था मोतीलाल नेहरू का टाइम का है. यस. यस, कम. कराची. वेयर इज कराची? कहाँ है कराची? बोलो ना, कराची कहाँ है? पाकिस्तान. वेयर इज कराची? पाकिस्तान. Before it was in India, so at this in 1931 India and Pakistan was same. So कराची के सेशन में हुआ था. Is that clear? After independence भाई अब सबको पता है कि क्या हुआ था. Yes. According to which act were the elections held in provincial legislature in India in 1937? इंडिया इंडिपेंडेंट होने से पहले भी प्रोविंशियल इलेक्शंस हो रहे थे, रिप्रेजेंटेटिव्स जा रहे थे. तो किसके तहत वो हो रहा था? गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, या नन ऑफ द अबव? ओके, कम. अमितांशु. Very good. Government of India Act 1900. And this act you can say was taken by our Indian Constitution also. Okay. Now next, which revolution in the world inspired the Indians to set up a socialist economy? American War of Independence, Russian Revolution, Turkish Revolution, French Revolution. Nishu? Ritik, Raj, you may go. Nishu. Okay, very good.
रशियन रेवोल्यूशन. सो रशिया से हम लोग ने लिया था इकोनॉमिक, जैसे कि यू कैन से, देखो मैं बता रहा हूं क्लियर, जैसे कि सवाल पूछा गया है कि इंडिया ने जो सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाने का एक प्लानिंग किया वो कहां से लिया गया था? रशिया से. फ्रांस से क्या लिया था? लिबर्टी, फैटर्निटी, इक्वलिटी का बात लिया था. ठीक है. अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से क्या लिया था? ह्यूमन राइट्स. टर्किश रेवोल्यूशन को तो बात नहीं हुआ है. ठीक है. ओके, नाउ हाउ मेनी अमेंडमेंट्स were considered before adopting the constitution? Okay, Anushka. Around 2000. Now what is amendments? Okay, very good. Some reformation you may go. Yeah, some changes. Is that clear? हम लोग ला सकते हैं. Among the leaders, among these leaders, who was a bitter critic of Mahatma Gandhi? Now, what is critic? आलोचना करने वाला. Yes, एक प्रकार से कहा जाए तो yes. कौन थे? गांधी जी का बिटर क्रिटिक, यानी कि हर एक बात पे क्रिटिक या क्रिटिसाइज करना कौन करते थे उनके बात को? Anyone? Okay, Amit, I started with you, let's end with you. Yes, this is the last question, 20th question, na? Okay, good. B.R. Ambedkar. Is that clear? So he was not all, okay, B.R. Ambedkar, you can say, yes, he did not think equality like what others thought. Yes, he fought for the rights of the minorities, people. You can say marginalized communities. He wanted equality, but not in other sense. He wanted some reservations for the minorities or marginalized. तभी वो लोग को हम लोग क्या बोलेंगे? समाज के मेन स्ट्रीम्स के साथ क्या कर पाएंगे? जोड़ पाएंगे. ठीक है? Is that clear? So these were the 20 questions. I hope you all understood these 20 questions. So this much for today. Till then, stay safe, stay healthy.